नमस्कार, मैं दीपन नाथ। आप सबको दीपन्स लर्निंग हब यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में मैं एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आशा करता हूँ आप एंड तक देखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, लाभ एवं हानि। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन, ए शर्ट इज बॉट फॉर 30 रुपीज। एक शर्ट 30 में खरीदी जाती है, माने एक শার্ট 30 টাকা দিয়ে কিনা হয়েছে। ओके, एंड सोल्ड फॉर रेस 40 रुपीज। ओके, और 40 में बेची जाती है, माने 40 টাকা বেচা হয়েছে। একটা শার্ট 30 টাকা দিয়ে কিনা হয়েছে এবং বিক্রি করা হয়েছে 40 টাকা দিয়ে। ঠিক আছে, 30 টাকা দিয়ে কিনা হয়েছে, বিক্রি করা হয়েছে কত টাকা দিয়ে? 40 টাকা দিয়ে। ঠিক আছে, ফাইন্ড দা প্রফিট পার্সেন্টেজ। লাভ প্রতিশত জ্ঞাত कीजिए, মানে কত টাকা লাভ হয়েছে এটার আমরা পার্সেন্টেজ শতাংশ বের করব। ঠিক আছে, তো দেখেন কি আছে, আমরা বট, ঠিক আছে, বট কত টাকা দিয়ে কিনা হয়েছে? বট কত টাকা দিয়ে? 30 রুপিস। ঠিক আছে, এন্ড সল্ড মানে বিক্রি করা হয়েছে, সল্ড কত টাকা দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে? 40 রুপিস। ওকে, আমাদের এখন কি বের করতে হবে? লাভ প্রতিশত। হ্যাঁ, প্রফিট পার্সেন্টেজ বের করতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, প্রফিট পার্সেন্টেজ। ওকে, পার্সেন্টেজ। देखें আমরা 30 रुपीज से बाई किया है और 40 रुपीज से सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये इतना इजी है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, দেখেন 30 টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি, 40 টাকা 30 টাকা দিয়ে কিনেছি, 40 টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি। এটা সবাই বলতে পারবে যে আমাদের 10 টাকা প্রফিট হয়েছে। ঠিক আছে, 30 টাকায় কিনলাম, 40 টাকায় বেচলাম, 10 টাকা প্রফিট হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কি বলছে? প্রফিট পার্সেন্টেজ। ঠিক আছে, তো প্রফিট পার্সেন্টেজ মানে কি? শতাংশ। আমাদের শতাংশ নিতে হবে এটাকে। ঠিক আছে, এটা আমরা মুখে বের করতে পারবো। 30 টাকা কিনেছি, 40 টাকা বিক্রি করেছি, দ্যাট মিন্স লাভ হয়েছে আমাদের কি? 10 টাকা। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কি করব? প্রফিট পার্সেন্টেজ নেব। ঠিক আছে, তো প্রফিট পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে কি হবে? প্রফিট পার্সেন্টেজ ইকুয়াল টু উপরে হবে কি? প্রফিট। ঠিক আছে, উপরে হবে প্রফিট, নিচে কি হবে? উপরে হবে প্রফিট আর নিচে কি হবে? নিচে সিপি হবে। ঠিক আছে, উপরে হবে কি? প্রফিট। প্রফিট মানে কি? লাভ। ঠিক আছে, আর নিচে কি হবে? সিপি হবে। সিপি মিন্স এলোকে সল্ট সল্ট কস্ট প্রাইস। কস্ট প্রাইস। সিপি হচ্ছে কস্ট প্রাইস। ঠিক আছে, মানে ক্রয় মূল্য, কিনা দাম। ঠিক আছে, এই যে বট ওটা হবে। ঠিক আছে, উপরে হবে কি? সিপি। উপরে হবে কি? সিপি মানে কস্ট প্রাইস, যেটা দাম দিয়ে আমরা কিনেছি। তো আমরা কত টাকা দিয়ে কিনেছি? আচ্ছা, লিখে রাখেন। এখানে হবে কি? সিপি কত টাকা? সিপি 30 টাকা দিয়ে আমরা কিনেছি, নিচে লিখবো 30। আর প্রফিট, প্রফিট কত হয়েছে আমাদের? প্রফিট বের করবো কিরকম? কিনেছি কত, মানে বিক্রি করেছি কত টাকা দিয়ে? 40 টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি। আর কিনেছি কত টাকা দিয়ে? 30 টাকা দিয়ে। ঠিক আছে, ওটা 40 থেকে 10 বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব। আর আমাদের বলছে যেহেতু পার্সেন্টেজ বের করার জন্য আমরা কি করব? 100 ইন্টু করবো। ঠিক আছে, তো নিচে হবে 30 রুপিস আর উপরে 40 থেকে 30 গেলে কত? 10, নিচে হবে কত? 100। এখন যদি আমরা ভাগ করি, আমরা কি পাবো? নিচে পাবো 3, উপরে পাবো কত? 100। এই 100 কে আমরা 3 দিয়ে যদি ভাগ করি, আমরা পাবো 33%। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, 33.33%। अगर भाग करने में कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं भाग करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट, if the selling price and cost price of a shirt are 1050 and 900 respectively, then what is the profit percentage? यदि एक शार्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमश 1050 एंड 900 है, तो लाभ प्रतिशत क्या বলা হয়েছে? মানে একটা শার্টের যদি বিক্রয় মূল্য, মানে বেচা দাম যদি 1050 টাকা হয় আর 900 টাকা কি হয়? কস্ট প্রাইস মানে কিনা দাম। ঠিক আছে, তো প্রফিট পার্সেন্টেজ মানে প্রফিট কত আছে আমরা পার্সেন্টেজ বের করব। ঠিক আছে, ইফ দা সেলিং প্রাইস, সেলিং প্রাইস কে আমরা বলবো কি? সেলিং প্রাইস এসপি। ঠিক আছে, এসপি মিন্স সেলিং প্রাইস মানে বিক্রি মূল্য। ঠিক আছে, বিক্রি মূল্য বা বিক্রয় মূল্য। সেলিং প্রাইস কত? 1050। ঠিক আছে, 1050 এন্ড কস্ট প্রাইস কত? 900। ঠিক আছে, কস্ট প্রাইস কত? 900।
उसमें एसपी मत मीन्स है सेल्स प्राइस है। सेल्स प्राइस कितना है 1005 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 900, ठीक है। तो उसमें हमको मालूम इजी से हो जाएगा कि 1900 से सामान खरीदा है और बिक्री सेल किया है 1050 रुपीज में, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। हम अगर 1050 रुपीज से 900 माइनस करूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। बट हमको क्या करना है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज बेर करना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट, ओके, प्रॉफिट परसेंट, ओके। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर में क्या करना पड़ेगा, ऊपर में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, जो अमाउंट प्रॉफिट हुआ है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट अमाउंट लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 1050 रुपीज माइनस 900, ओके। मतलब एसपी माइनस सीपी आर डिवाइडेड बाय कितना होगा, सीपी होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा इनटू 100, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना मतलब दाम से, जितना मूल्य से हमको हम बेचा है वही लिखना पड़ेगा, ये एसपी, ठीक है। 1050 रुपीज से हम सामान विक्रय किया है, तो 1050 रुपीज माइनस 900 से खरीदा है, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एसपी माइनस সিপি, ঠিক আছে। মানে 1000 টাকা দিয়ে জিনিস কিনেছি আর 1050 টাকা দিয়ে জিনিস বিক্রি করেছি আর 900 টাকা দিয়ে কিনেছি, ঠিক আছে। তো আমরা বিক্রি মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বিয়োগ করব, ঠিক আছে। 1050 বিয়োগ কত 900, ঠিক আছে। নিচে কি হবে, নিচে হবে কি কস্ট প্রাইস, হ্যাঁ, কস্ট প্রাইস মানে कितने मूल्य से हम खरीदा है, ठीक है। तो ऊपर लिखेছি 1000 বিয়োগ 900 আর নিচে কি হবে 900, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, ठीक है। एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो इसमें 100 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में 1050 से 900 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 150 आएगा, ठीक है। और नीचे में होगा 900 इंटू कितना है 100 है, ठीक है। 0000 चला जाएगा 150/9, ठीक है। तो ये डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 900, ठीक है। हाँ, तो 150 है, 9 है, तो वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप डिवाइड करके चेक कीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 16.66% ये सही होगा, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला से हो जाएगा एसपी माइनस सीपी मींस सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला से हमको इजी से हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16.66%, ओके। नेक्स्ट 3 नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया है, ए शॉपकीपर सेल्स ए बेस फॉर 3500 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेस इज 2800 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 में बेचता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसमें देखिए सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस है 3500, ओके। एंड कॉस्ट प्राइस मतलब कितना प्राइस से खरीदा है 2800, ठीक है, 2800, ठीक है। तो हमको क्या बेर करना है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ओके, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी बाय की सीपी इंटू 100, ओके। মানে সেলস প্রাইস বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য পূরণ 100, হ্যাঁ। তো এসপি কত, এসপি হচ্ছে 3500 বিয়োগ সিপি কত 2800, 2800 আর নিচে কত, নিচে হবে 2800
ইন্টু কত 100 হবে, ঠিক আছে। तो 3500 से 2800 डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, कि कितना होगा देखिए, 700 होगा, ठीक है। और नीचे में क्या होगा 2800 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य चला जाएगा, ऊपर में होगा 700, नीचे में 28, ठीक है। तो 700 बाई क्या होगा 28, ओके। और 700, हाँ 700 बाई क्या होगा 28 होगा, ठीक है। तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के बाद आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 25% होगा, ठीक है। 25% आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। 25% ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ओके। तो देखिए ये प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। मतलब सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस मीन क्या, जितना मूल्य से हम बेचा है, ठीक है। सेल क्या है, ठीक है। और सामान मतलब सेल क्या है। और कॉस्ट प्राइस मतलब जितना मूल्य से हम क्या है सामान खरीदा है, ठीक है। ओके, नंबर 4। नंबर 4 चेक कीजिए। ए वॉच इज बॉट फॉर 6000 एंड सोल्ड फॉर 5500, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। एक घड़ी 6000 में खरीदी जाती है और 5000 में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है। मतलब একটা ঘড়ি কেনা হয়েছে ৬০০০ টাকা দিয়ে এবং ৫৫০ টাকা দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য লস পার্সেন্টেজ, মানে কত কত শতাংশ কি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে, কত শতাংশ কি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে, আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে, ঠিক আছে। তো লস এখন হবে, আগে পেয়েছি প্রফিট পার্সেন্টেজ, এখন কি করবো লস পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে, লস পার্সেন্টেজ, ওকে। তো প্রথমে আমাদের দেখতে হবে কি আমরা কত টাকা দিয়ে জিনিস কিনেছি, এলো বট, বট মানে সিপি হবে, ঠিক আছে। সিপি কস্ট প্রাইস কত 6000, ওকে 6000 এন্ড সেলস প্রাইস বিক্রি করেছি কত 5500, ঠিক আছে। এখন আমরা কি বের করবো লস পার্সেন্ট বের করবো, লস কত টাকা আমাদের লস হয়েছে, ठीक है, लॉस परसेंट, ओके। तो हमरा प्रथमे हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, नीचे में हमको जितने मूल्य से हम खरीदा है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम कितने मूल्य से खरीदा है 6000, ये नीचे में लिखना पड़ेगा। और ऊपर में देखिए, ऊपर में लिखना पड़ेगा लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना अमाउंट, कितना वैल्यू लॉस हुआ है। तो देखिए लॉस हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6000 से ये डिवाइड माने माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 6000 माइनस 5500, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूला क्या होगा देखिए, फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है, बाई की सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो देखिए ये माइनस कीजिए, ये माइनस कीजिए 6000 से 5500 माइनस कीजिए, कितना होगा 500 होगा। और नीचे में होगा 6000 इंटू क्या 100, ठीक है। शून्य शून्य ये चला जाएगा, ये शून्य शून्य चला जाएगा, ऊपर में होगा 50, नीचे में होगा 6। ये डिवाइड कर सकते हैं आप, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या होगा, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो होगा 8.33%, 8.33%, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा देखिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट डाउट लगेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी 5 नंबर 5, ओके। तो 5 नंबर में क्या दिया है, Dinesh bought 12 apples at the rate of 300 per dozen. He sells each apple at the rate of 30. How much profit and profit did Dinesh get? दिनेश ने 300 प्रति दर्जन की दर से 12 शेयर खरीदे हैं और प्रत्येक सेब को 30 की दर से बेचता है। दिनेश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये इतना इजी है, देखिए क्या करना पड़ेगा। दिनेश ने कितने एप्पल खरीदा है 12, डजन मीन्स 1 डजन इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 एप्पल्स खरीदा है कितने रुपीज से 300 से, ठीक है। तो 1 एप्पल्स मतलब 80
वन सेब की प्राइस कितना होगा, 300 को हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 24 25 रुपीज, ठीक है। वन एप्पल का प्राइस है कितना, 25 रुपीज, ठीक है। तो ही सेल्स ईच एप्पल एट द रेट 30 रुपीज, ठीक है। तो देखिए ईच एप्पल कितना से, ईच एप्पल कितना से, कॉस्ट किया है 25, ठीक है। 25 मतलब প্রত্যেকটা আপেল 25 টাকা দিয়ে কিনেছে, এন্ড ইচ অ্যাপল সেলস প্রাইস, প্রত্যেকটা অ্যাপল মানে আপেল কত টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে, 30 টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে, ঠিক আছে। 25 টাকা দিয়ে প্রত্যেকটা অ্যাপল কিনেছে আর 30 টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে। তো আমাদের দিনে হাউ মাচ প্রফিট ডিড দিনেশ, এটা কত প্রফিट হয়েছে, 5 টাকা পেয়েছে, ঠিক আছে। এটা আমাদের কি শতাংশে বের করতে হবে। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, एसपी कितना है 30 माइनस सीपी कितना है 25 डिवाइडेड बाय कितना है 25 इंटू क्या है 100, ठीक है। तो नीचे में होगा 25, ऊपर में क्या होगा 5 इंटू कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो 4 होगा, 4 ये 4 होगा, ठीक है। 4 पचा 20, 20% हो जाएगा शायद, ठीक है, 20%, ठीक है। तो 20% ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आई थिंक अपना देख क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर समझ भी नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी नंबर 6, मैं कोशिश करूंगा जितना इजी से समाधान हो जाए, ठीक है। आप लोग मतलब पूरा क्या मतलब ध्यान से आप वीडियो देखिए, ठीक है, पूरा ध्यान से क्लास देखिए, आपको आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। 6 में क्या दिया है, चेयर इज बॉट फॉर 800 एंड सोल्ड फॉर 1100, फाइंड द गेन परसेंटेज है। एक कुर्सी 8 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 माने 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी इतना सहज है, ठीक है। हाँ, चेयर को कितना सेल्स प्राइस कितना है 800, ठीक है। सेल्स प्राइस मतलब बॉट जो बॉट है ना, ये 800 से सेल किया है, सेल्स नहीं, बॉट मीन्स किना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 800 और सेल्स प्राइस कितना है, 1100, ठीक है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, फाइंड द गेन परसेंट, गेन और प्रॉफिट सेम है, ठीक है। गेन ऑब्लिक प्रॉफिट की सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी, प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट गेन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू क्या है 100, ठीक है। 100 किस लिए 100, क्योंकि उसमें परसेंटेज दिया है, इसलिए 100 को 100 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर में एस पी कितना है, एस पी 1100 है और सी पी कितना है 800 है, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, नीचे में सीपी होगा, सीपी कितना है 800 है, इनटू क्या है 100, ओके। तो 1100 से 800 माइनस करने के बाद कितना होगा 300 होगा, और नीचे में 100 होगा, 800 होगा इंटू 100, 0 0 चला जाएगा, ये होगा 300/8, ठीक है। तो 300/8 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, करने के बाद 37.5% आएगा, 37.5% आएगा, ठीक है। तो 37.5% कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगर अगर सीपी से एसपी मतलब सीपी से एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और सीपी से एसपी कम ही होगा तो ये लॉस होगा, ठीक है।